Okay, so, good afternoon. So in the last class, we discussed about the imperial households of the Mughal Empire, and in this class, going to discuss about the imperial officials. Mughal Empire, the uh, expansion of Mughal Empire was a large in this Indian subcontinent. So there must be a extensive administrative system to control over this territory. So in the first topic, we'll discuss about the imperial officials, mainly those officials, those who were related to the Mughal Empire. In the officials and the court politics, and in the novels, there are mainly three or four types of novels existed in the Mughal court. First one, uh, the Rajputs and the Muslims. Rajputs and the Muslims. And in between the Muslims are divided into three groups: Iranian, Irani, Turani, and Hindustani. Iranian, Turanian, and Hindustani. During the regime of the Akbar, the Rajput, from the time of the regime of the Akbar, it was continued for a long time until the Aurangzeb's. The Rajput, they placed in a important post. The various Rajput leaders they posted in a very important post in the Mughal court. काफी राजपूत chiefs को ऐसे important post किया गया था. The Rajput Akbar married the daughter of a Rajput king Bharmal, the Bai Harka. Bharmal was posted as an important official in the Akbar's court. Raja Todarmal was also a Rajput leader, and he was also a great warrior of Akbar. And various these types of Rajput leaders, Rajput rulers, and they appointed as the nobles in the Mughal court politics, and they placed as the important important court members and important nobles in the Akbar's court. During the regime of Jahangir, during the regime of the Jahangir, the Iranian Muslims they gained their power in the Mughal Empire. Basically, Nur Jahan, we actually discussed in our previous class that during the regime of the Jahangir, the main administrative control was over the Nur Jahan, the wife of the Jahangir. And during this time, Nur Jahan, she was from Iranian group, and due to this, the Iranian Muslims they gained more powers in the Mughal court politics. And during the Aurangzeb, the Marathas they placed important place in Akbar's in Aurangzeb's court. Okay. All holders of government offices held ranks mansab. सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एक रैंक दिया जाता, that was the mansab एक पोस्ट का नाम था. मनसबदार जो पोस्ट जाते थे उनको मनसबदार कहा जाता. तो मनसबदार एक्चुअली रैंक को बोला जाता, जिस रैंक को एक रैंक के हिसाब से. मनसबदार का भी दो पार्ट होता है, जाट और सवार. जाट Z-A-T, Zat was the rank. Zat was the basically rank. जो उस रैंक के लिए उनको जितना सैलरी मिलता, जाट उस रैंक के लिए कितना सैलरी मिलता, जो 5,000, 1,000, 10,000 जो भी है जज के लिए, जिस पोस्ट के लिए उनको जितना सैलरी मिल रहा है. और सवार उस पोस्ट के लिए, उस पोजीशन में, उस नॉबल उस पोस्ट में उस जाने के लिए, उस रहने के लिए उस मनसबदार को जितना
घोड़ा यानी हॉर्सेस मेंटेन करना पड़ता, उसको सवार कहा जाता है। तो उस पोस्ट का नाम था मनसबदार का। उस पोस्ट को रैंक को डिटरमाइन होता है जज, कौन सी पोस्ट है उनका, वो था जज। और उनको जितना पैसा सैलरी मिलता वो जज, और उसके लिए उनको जितना हॉर्सेस मेंटेन करना पड़ता वो था, जितना हॉर्सेस मेंटेन करना पड़ता वो था सवार। तो जज और सवार ये रेगुलरली एक सर्वे होता है, रेगुलरली सर्वे होता है जो कितना हॉर्सेस उनके पास है, और वो हॉर्सेस के आर्मी सही पोजीशन में है, उनका जो कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, फिजिकल कंडीशन सही है, इसको भी जांच किया जाता। और दाग, अकबर के समय से दाग, जो घोड़े के ऊपर, जो हॉर्सेस के ऊपर दाग सिस्टम, जो घोड़ा को एक पीरियडिकली उसको चेक किया जाता, उनका उस घोड़े का जो काम करने का जो पावर वो कितना है, कितना वो अभी भी फिजिकली फिट कितना है ये देखा जाता, और घोड़े के ऊपर एक दाग लगाया जाता है। तो जो जिस सिस्टम को, जिस सुपरविजन सिस्टम को दाग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले मनसब एक नया वर्ड देखा, उसके बाद मनसबदार का दोनों नया वर्ड देखा, दोनों पार्ट में मनसबदार को देखा जाता है, जट और सवार। और जो नया एक देखा है दाग सिस्टम। और ये दाग एंड हुलिया सिस्टम बहुत पहले अलाउद्दीन खिलजी का समय, अलाउद्दीन खिलजी इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में। अच्छा, मुगल एम्पायर का टोटल जो उसका पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करते, पेमेंट सिस्टम को जो देखभाल करने के लिए मीर बख्शी नाम का एक लोग, जो उस पोस्ट में जो लोग थे उनका पोस्ट का नाम था मीर बख्शी। मनसबदार होने के लिए अपॉइंटमेंट मिलता, और अपॉइंटमेंट पाने के लिए काफी लोग उस पोस्ट में अपॉइंटमेंट पाने के लिए क्या करते, एप्लीकेशन डालता, जो नेक्स्ट टाइम उनको मनसबदार का पोस्ट मिले, वो भी इतना हॉर्सेस मेंटेन करेंगे। क्योंकि मनसबदार का पोस्ट मिल जाए तो उनको कोर्ट डायरेक्टली, मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स में उसको एंट्री मिल जाएगा, कोर्ट में डायरेक्ट डे टू डे कोर्ट पॉलिटिक्स में, कोर्टियारी में उसको एंट्री मिलेगा। तो इसके लिए एप्लीकेशन पड़ता, एप्लीकेशन को डायरेक्टली एम्परर के सामने एप्लीकेंट को देखा जाता है, एप्लीकेशन को पढ़ा जाता है, एप्लीकेंट को एम्परर के सामने उसका इंटरव्यू होता। तो ये सब काम करने के लिए, सब काम देखभाल करने के लिए मीर बख्शी थे। मीर बख्शी यही सब काम को कोऑर्डिनेट करते एम्परर के साथ, मुगल एम्परर के साथ, जो एप्लीकेंट का जो कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ मीर बख्शी इस कोऑर्डिनेशन को चलाते थे। ये छोड़ के भी और भी कुछ मिनिस्टर थे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जैसे फिनांस मिनिस्टर दीवानी आला, फिनांस मिनिस्टर सदर सुदर, जो जिस मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स एंड मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स को ग्रांट्स देने के लिए जो मिनिस्टर होता है उनको सदर सुदर कहा जाता। नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो ऐसे मुगल एम्पायर में काफी हमें मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स मिलेगा। और लोअर लेवल में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी ऐसे काफी ऑफिशियल्स थे, मिनिस्टर्स था, प्रोविंशियल गवर्नर जिसको सूबादार कहा जाता है। एक प्रोविंस को सूबा, जैसे बंगाल एक सूबा था, बंगाल सूबा का जो नवाब के नाम जानते हैं, जो लास्ट नवाब, जो नवाब सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, उसके पहले अलीवर्दी खां, तो ये बंगाल सूबा का ही मैंने मुर्शिद कुली खां थे बंगाल सूबा का जो सूबादार। और उसके बाद उसके अलीवर्दी खां, और उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला जो आए, और उसके बाद ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ। तो ऐसे सूबा, एक सब डिवीजन को, जो प्रोविंशियल डिवीजन को सूबा कहा जाता। तो इस सूबा के अंदर भी, इसका अंडर में, सूबादार के अंडर में भी काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रेगुलर डे टू डे काम करते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एवरी वर्क एंड एवरी वर्ड्स, एवरी कैलकुलेशन वाज रिकॉर्डेड, रेगुलर रिकॉर्ड होते रहते, एक स्क्राइब रहते, जो राइटर, जो रेगुलर बेसिस में
ये सब कुछ जो बात हो रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट हाउस में जो रेगुलर डिबेट हो रहा है, डिबेट का डे टू डे लाइफ का डिबेट का ईच एंड एवरीथिंग वहां पे नोटेड होता है। कोर्ट में जब कोई सवाल जवाब चलते रहते हैं रेगुलर, उसका एक नोट डाउन होता है, जो कुछ लोग उसको नोट डाउन करने का काम करते हैं, जो रिकॉर्ड रखने के लिए। जस्ट लाइक दैट मुगल कोर्ट में और लोअर सूबादार के लोअर कोर्ट में भी जो रेगुलर जो सवाल जवाब जो भी काम होता है, जो हिसाब किताब सब कुछ एक हिसाब के कॉपी में रखा जाता और उसका रिकॉर्डेड था। और ये रिकॉर्ड रेगुलर लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एम्परर के सेंट्रल एम्परर के पास जा रहा है। एम्परर से कोई मैसेज, एम्परर को कोई मैसेज देना है सूबादार को, तो ये मैसेज आता। तो ये सब मैसेज आना जाना के काम करते थे रानार। हाँ, जो फुट रानर, जो एक राउंड द क्लॉक ये घूमते रहते, दौड़ के ये राउंड द क्लॉक एक जगह से और एक जगह खबर पहुंचाते रहते हैं। जो ओल्डेस्ट पोस्टल सिस्टम हम जिसको कह सकते हैं, ओल्डेस्ट पोस्टल सिस्टम। राजा प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना मैसेज एम्परर के पास पहुंचा रहे हैं, एम्परर अपना मैसेज प्रोविंशियल गवर्नर के पास पहुंचा रहे हैं। तो ये सब कुछ रेगुलर बेसिस में पहुंचते रहते थे। और ये जो देखो तुम्हारे बुक में, इन एडिशन एजेंट ओकिल ऑफ नोबल्स and the okils of nobles and the regional rulers recorded the entire processings of the court under the heading news from the actual court. Akbarat-i-darbar-i mullah. Akbarat means khabar, news. The Akbarat contained all kinds of information such as attendance at court, grants of officers and titles, diplomatic missions, presents received, or the inquiries, regular discussion, सब कुछ वहाँ पे and about the health of an officer, सब कुछ रेगुलर बेसिस में एम्परर और लोकल सूबादार के बीच में ये एक कनेक्शन होता था रेगुलर। एक खबर अकबरत, और इस अकबरत को भी हम कह सकते हैं जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। और अकबरत इस वर्ड से अकबर, जो अकबर जो न्यूज़पेपर को हिंदी में कहा जाता है, जो अकबर वही वहां से आया है। और जो राजपूत क्लैंस जो एक्चुअली डायरेक्ट रूल में नहीं था, जिसके साथ मुगल एम्पायर का एक फ्रेंडली सबॉर्डिनेट था, बट एक फ्रेंड रिलेशन था जिसके साथ मुगल एम्पायर का। ऐसे रूलर्स के साथ जो मुगल एम्पायर अपना रिलेशन, उन रिलेशन को रखने के लिए, उस रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो मैसेजेस का रिटर्न ये जाता है, उसके लिए जो मास्टर से कोई पर्टिकुलर मास्टर, कोई राजपूत रूलर से कोई मैसेज देना है मुगल एम्पायर को, तो मास्टर से रानर जो मैसेज पहुंचा रहे हैं वो डायरेक्टली मुगल एम्पायर के पास गया। इन रिटर्न मुगल एम्पायर जो मुगल एम्पायर से जो मैसेज मिला, वही मैसेज अपने मास्टर के पास आके भेज दिया। ये राउंड द क्लॉक सिस्टम में इस रानर का जो रेगुलर काम जो रानर करते थे, ये काम उनका नहीं था, ये इसके लिए अलग पोस्ट था। इस टॉपिक के एकदम लास्ट जो टॉपिक है उसमें देखेंगे beyond the center provincial administration. पहले मैं previously already mentioned the entire territory of the Mughal empires are divided into some suba, the province, and every subas, in every subas the head of the provincial administration was called as the subadar, the governor. The governor, the governor who reported directly to the emperor. The governor or the subadar was the direct representative in the suba, in the province, a direct representative of the emperor. And under the subadar, there were various types of ministers and officials like Diwan, Bakshi, Sadar, etc. And the sarkars into which the subas was divided. Subas further divided into sarkars, Subas further sarkars में divided था, कुछ sarkar में divided होते थे subas, often overlapped with the jurisdiction of commandants who are deployed with contingent in heavy cavalry and musketeers of the districts. तो ये directly उसके बाद
divisions, the sarkars were divided. Subas was divided into sarkars, different sarkars. Each department of administration maintained a large support. Each department of administration maintained a large support staff of clerk, accountants, or auditors, messengers, and other functionaries who were technically qualified officials, functionaries in the accordance of the standardized rules and procedures. ऐसे हर एक सूबा ये सब डिवीजन के अंडर में ऐसे काफी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स रहते थे, क्लर्क, स्टाफ, अकाउंटेंट रहते थे, जो रेगुलरली एक एफिशिएंटली इस काम को रेगुलेट करते हैं, एफिशिएंटली रेगुलरली इस काम को रेगुलेट करता। और उन लोगों के लिए लोकल लैंग्वेज के साथ साथ पर्शियन लैंग्वेज भी जानना जरूरी था। पर्शियन लैंग्वेज में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स का मेनली पर्शियन में होता, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम बेसिकली पर्शियन में होता। इसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज जानना भी जरूरी था, क्योंकि लोकल लोगों के साथ डील करने के लिए लोकल लैंग्वेज जानना जरूरी था। तो इसी तरह से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग बेसिस में, फ्रॉम एक हायरार्किकल बेसिस में, और हम कह सकते हैं, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, जो थोड़ा इसका मोटिव था डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल से इसको डिवाइड किया गया था डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स ऐसे एंटायरली एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया था, जो पार्ट बाय पार्ट इसका डिविजन्स होता है। जो बाद में हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसेंट्रलाइजेशन जो मोटिव है, जो उसको हम कह सकते हैं ऑलरेडी मुगल एम्पायर से थोड़ा ये एग्जिस्ट करते। Next day we'll start, in the next class we'll start beyond the frontiers, and we'll read about the Safavid. Okay, so have a good day.